Good evening. There are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Apart from these functions, one more function is also performed by every manager, that is known as coordination. Coordination is not only a function, but it is the essence of management. The need of coordination can be more clear by these points. The first is your growth in size, second functional differentiation, third is specialization. Listen, first is growth in size, second is functional differentiation, third is specialization. Now see one by one. First, growth in size. The need of coordination increases with the increase in size of the organization. In a large organization, there are large number of people working. Each individual employee has his own need and objective. So there is a more need to synchronize the effort of these employees toward common goal of the organization. For organizational efficiency, it is important to harmonize the individual. It is important to harmonize individual goal with organizational goal through coordination. आज ऑर्गेनाइजेशन के आकार में वृद्धि के साथ साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी काफ़ी बढ़ गया है। हम जानते हैं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स काम करते हैं। जितने भी लोग हैं उनका अपना अपना ऑब्जेक्टिव और नीड होता है, इसलिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है इन सारे एम्प्लॉइज़ के एफर्ट को सिंक्रोनाइज करके कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट किया जाए। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए भी यह ज़रूरी होता है कि कोऑर्डिनेशन के ज़रिए इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ इंटीग्रेट किया जाए। Second is your functional differentiation. Second importance is functional differentiation. The function of an organization are divided into different departments, sections, or divisions. Each department works in isolation for achieving its own objectives, but in actual practice, all the departments or sections are interrelated and interdependent. So there is more need to relate and bring together the activities of all divisions as they are part of the one organization only. The coordination is needed to minimize the differences among the department. एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस को डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन और डिवीज़न के अंतर्गत बांट दिया जाता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है
कि सभी डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं और इसमें कोऑर्डिनेशन की अहम भूमिका होती है। द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट का आपस में जो डिफरेंसेस होता है उसको कोऑर्डिनेशन के थ्रू कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज स्पेशलाइजेशन। कहता है इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील दैट he is the only qualified people who can take the right decision at the right time in right direction. And there are many specialists working in the organization. If all the specialists think like that or work in their own way, it will result in chaos or confusions. So there is more need to coordinate the activities of all specialists in a common direction to get the benefit of these specialists. आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, मॉडर्न और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। यदि स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट यह सोचते हैं कि वे ही एक ऐसा क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट व्यक्ति हैं जो सही समय पर और सही दिशा में सही डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट एक साथ काम करते हैं और सभी स्पेशलिस्ट यदि अपने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे और अपने अपने तरीके से डिसीजन लेना स्टार्ट कर दे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन और केओस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी स्पेशलिस्ट के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को या गोल को अचीव कर सके या इन स्पेशलिस्ट से अधिकतम बेनिफिट लिया जा सके। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन।